Hello students, in the last lecture we have discussed regarding the formation of micelle, the concentration at which this micelle formation takes place, which is called as critical micelle formation concentration, and the temperature at which the micelle formation takes place, what we call it as a Kraft temperature. Today we are going to discuss the cleaning action of soap. So we have said that the soap and detergents, they form micelle, and that's why due to the formation of micelle we can clean the cloths, or we can use that particular material as a cleaning agent. So cleaning action of soap and detergent we are going to discuss in the today's lecture. Okay, so how the soap or detergent act as a cleaning agent we are going to discuss over here. So for that purpose, first we will understood how the soap reacts with the oil and grease material, okay, which we called as a dirt on the cloth or on the surface. So whenever we add a soap solution, okay, whenever we add a soap solution or whenever we put the soap solution on the dirty cloth, okay, which has a spot of oil or a drop of grease, okay, what happens? The oil or soap, so for example, consider this is the cloth or this is the surface, okay, on that surface there is a patch of oil, okay, or a patch of grease. What happens whenever we add soap solution or a detergent solution, the hydrophobic part. So what soap has? Two parts. One is hydrophobic tail and another one is hydrophilic head. So the soap has two parts. One is hydrophobic part, another one is hydrophilic part. What happens whenever we put a soap solution? Okay, that soap solution come in the contact with this part of oil or a grease. Now we know that this oil or grease, what they are? They are hydrocarbons. What they are? They are also hydrocarbons. The structural units are nothing but the hydrocarbons. Now we know that what we know, like dissolves like. Now both are hydrocarbon. This is also hydrocarbon and this hydrophilic part of the soap is also hydrocarbon. This is also non-polar aid or non-polar structure, and the oil and grease, this is also a non-polar material. So two non-polar materials, they easily mix with each other, or what we say it as like dissolves like, and that's why whenever this hydrophobic part of a soap comes in contact with the oil drop or a grease patch, what happens? The hydrophobic tail get dissolved, okay, in the oil, and the hydrophilic part, okay, the hydrophilic part, it will remain on the surface. Now at this
what happen here, there are all water molecules. Water molecules, and these water molecules forms what? These water molecules are in contact with this negative part of the soap or hydrophilic end, and now this hydrophilic end water molecule, what they do, this hydrophilic part try to dissolve in this water. Okay, like dissolves in like, and that's why this oil droplet totally pulled upward. Okay, totally pulled upward in upward direction in the water, and what happened? You will get the micelle of oil in which the hydrocarbon or hydrophobic part of a soap is dissolved in the oil, and hydrophilic part in the water. Now we will get the micelle from that oil drop. Okay, and now what happens on that micelle? There is what? Negative charge. Negative charge is present on this micelle, and that's why the number of micelles that forms by this soap and oil, they do not get aggregate. Why? Because both carry negative charge. All the micelles, whatever number of micelles formed due to this action of soap, they carry negative charge, and whenever they come together, okay, both carrying the same charge, both having the like charges, that is negative charge, they get repelled, and that's why the aggregation or the association of oil particle does not take place. And what we see that the surface or the cloth is now free from the oil. Okay, it is clean. Okay, and like this soap will act on the oily material or greasy material. Okay, तो समझ में आया? तो देखो क्या चीज है कि क्लीनिंग के एक्शन हम देख रहे हैं कैसे सोप क्लीन करता है सरफेस को सोप कैसे क्लीन करता है। तो जब भी आप कोई कपड़ा लेते हो या फिर कोई सरफेस है जिसके ऊपर ऑयल या फिर ग्रीस का दाग लगा हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ऑयल या फिर ग्रीस का दाग जिस कपड़े को लगा हुआ है उस कपड़े को हम सोप सॉल्यूशन में भिगो देते हैं, सोप सॉल्यूशन में डाल देते हैं। तो सोप सॉल्यूशन में डालने के बाद क्या होता है कि वो सॉल्यूशन में जितना भी सारा सोप के पार्टिकल्स है, ओके, वो सोप के पार्टिकल क्या होते हैं इस ऑयल के ड्रॉप के साथ, जो ऑयल कपड़े के ऊपर लगा है उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं। अब उसके कांटेक्ट में आने के बाद क्या होगा कि आपके सोप सॉल्यूशन में वाटर है, उसके साथ सोप है और इस कपड़े के ऊपर का ऑयल है, ठीक है, ऑयल ड्रॉप और वाटर इनके बीच में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ऑयल जो है वो हाइड्रोकार्बन है या फिर ग्रीस जो है वो क्या है हाइड्रोकार्बन है। तो ये ऑयल आपका डायरेक्टली वाटर में डिसॉल्व होने वाला नहीं है, समझ में आया? लेकिन सोप में कुछ हाइड्रोफोबिक पार्ट है या फिर हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, ओके, वो सोप का हाइड्रोकार्बन का पार्ट क्या करता है कि वो जो ऑयल या फिर ग्रीस का जो हाइड्रोकार्बन ड्रॉप है, ओके, या फिर वो जो पैच है ऑयल या फिर ग्रीस का उसके साथ कांटेक्ट में आ जाता है। तो हमें एक चीज पता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक हाइड्रोकार्बन, इधर भी हाइड्रोकार्बन है, इस सोप में भी हाइड्रोकार्बन है, तो दोनों एक साथ आ जाएंगे क्योंकि सेम क्या है उनका स्ट्रक्चर या फिर उनका जो बेसिक यूनिट है वो सेम है, तो दोनों भी नॉन पोलर है, तो दोनों नॉन पोलर एक जगह पे आ जाएंगे। ऐसा होकर क्या हो रहा है कि सोप का हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है कि वो हाइड्रोफोबिक पार्ट ये ऑयल के अंदर चला जाता है। अभी हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑयल के अंदर चला गया तो सरफेस के ऊपर, ऑयल के सरफेस के ऊपर क्या है हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ठीक है, और ये हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या होता है कि हाइड्रोफिलिक पार्ट पोलर एंड है, हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या है पोलर एंड है, और इसके आजू बाजू में क्या है पोलर वाटर मॉलिक्यूल है, तो वापस लाइक डिसॉल्व लाइक है, लाइक डिसॉल्व लाइक है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल और ये जो आपका पोलर पार्ट है, पोलर हेड है आपके सोप का, ये दोनों एक दूसरे के
इंटरेक्शन में चले आते हैं और वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इस पोलर एंड को खींचना स्टार्ट करते हैं, अपनी तरफ लेने के लिए अट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही अट्रैक्शन हो जाएगा तो ये जो आपका ऑयल का जो पैच था वो एक ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। वो ड्रॉप जो है वो ऊपर लिया जाएगा, वाटर में चला जाएगा। ओके, तो वाटर में चले जाने के बाद आपका जो मिसेले फॉर्म दिखेगा आपको, वो मिसेले ऐसा दिखने वाला है। जिधर ये जो है हमने दिखाया है सर्कल, बड़ा सर्कल, वो क्या है, ऑयल का एक छोटा सा ड्रॉप है जिसमें सोप का हाइड्रोफोबिक रीजन डिसॉल्व हुआ है और हाइड्रोफिलिक जो है कि जो पोलर एंड है वो सरफेस के ऊपर है इस ड्रॉप। ठीक है, अभी ऐसे बहुत सारे ड्रॉप्स बनेंगे, ऐसे बहुत सारे मिसेले बनेंगे। अभी ये मिसेले वापस एग्रीगेट होकर ऑयल बनाएंगे क्या, ऑयल का ड्रॉप बनाएंगे क्या, या फिर ऑयल का पैच बहुत बड़ा पैच बनाएंगे क्या? तो नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि हर एक मिसेले के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सेम चार्ज है। अभी सेम चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि वो सेम चार्जेस वाले दो पार्टिकल्स या फिर दो मिसेले एक दूसरे के साथ कभी भी कांटेक्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि सेम चार्जेस के बीच में रिपल्शन होता है, हमें पता है। ठीक है, तो ऐसे क्या करता है आपका सोप या फिर डिटर्जेंट क्या करता है, एक्ट करता है। उसकी एक्शन ऐसे होती है, जब भी ऑयल और ग्रीस के कांटेक्ट में सोप चला आता है, सोप का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो ऑयल या ग्रीस में डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व होने के बाद जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो किधर खींचा जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल उसको खींचना स्टार्ट करके, तो ये सरफेस के ऊपर से ऊपर 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 चला जाएगा। और जैसे जैसे ऊपर चला आएगा वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा आपके सोप के जो पार्टिकल्स है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि वो सरफेस के ऊपर से एक स्फेरिकल बॉडी के शेप में, जिसको हम मिसेले बोलते हैं, मिसेले के फॉर्म में बाहर चला जाएगा और आपको ऐसा दिखेगा कि वो कपड़े के ऊपर से ऑयल चला गया है। ओके, या फिर कपड़े के ऊपर से जो सरफेस के ऊपर से जो ग्रीस का पैच था वो चला गया। ठीक है, तो दिस इज द व्हाट एक्शन ऑफ सोप, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप और क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम दिस टॉपिक इज the next part from this topic is preparation of polyps. Okay, सर पोलाइड हमने सीख ली। ठीक है, आपने बता दिया कि इतने टाइप के पोलाइड है, सोल है, जेल है, इमेज में ये कॉमन टाइप के पोलाइड्स है जो कॉमनली यूज करते हैं हम लोग। इसके बाद में सॉलिड सोल है, ओके, फोम है, ओके, या फिर जेल है, ये सारा सब कुछ है बराबर। लेकिन इसको बनाते कैसे, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड, okay, and to study how they are prepared, वो सीखने के लिए हम कुछ मेथड सीखने वाले हैं। ओके, तो इसके अंदर इस हेडिंग के अंदर कुछ मेथड्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हमको हम बोल रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ पोलाइड्स। ओके, सो फर्स्ट मेथड इज केमिकल मेथड। So by the means of chemical reactions we are able to produce the colloids, the colloidal gels or colloidal sols, okay, colloidal solutions. So there are many methods or there are many chemical reactions by which we can produce the colloids or colloidal solutions. Some of them are oxidation, reduction, hydrolysis, then double decomposition. Okay, this reaction can be used to produce colloids, and we are going to discuss a few some of the example or one of the example from the each category. So first we will discuss this double decomposition. Double decomposition. So we have studied this decomposition and double decomposition reaction in the first video. Okay, so arsenic oxide As2O3 on reaction with 3 molecules of H2S undergoes double decomposition to give the arsenic sulfide As2S3 plus 3 molecules of water. Now this arsenic sulfide
AS2O3, which is formed, okay, in the reaction mixture. This is a soul, okay, and the method is double decomposition, okay. So the particles of sulfide, okay, they having a particle size of colloidal particle, okay. So this is one of the method to form the arsenic sulfide as a soul. The second one is oxidation. Oxidation reaction, the sulfur dioxide on oxidation with H2S, okay, H2S gives a soul of sulfur plus 2 water molecules. So the sulfur formed during this oxidation, the oxidation of SiO2 with sulfur dioxide. Okay. So whenever we carry out this oxidation, the sulfur is formed, and the small particle of sulfur, they get aggregate or they get associated to form the particles of colloidal size, and you will get a colloids. Okay. So this is one of the soul of sulfur. This is the one of the soul of sulfur. Then in the third method, we will discuss the reduction. This is the reduction. So reduction can be carried out. So which reaction we are going to study? We are going to study the reaction of aluminum chloride, that is gold chloride, the presence of formaldehyde and water. So this gold undergoes oxidation. Gold undergoes oxidation, and it gives the reaction gives 2 atoms of gold. Okay, then 3 molecules of formic acid plus 6 molecules of HCl. Okay, so whenever the chloride of gold, okay, is subjected for reduction, what happens? This is in the plus 3 state. Okay, it receives 3 electrons and get converted into its 0 oxidation state. Now, small atom of gold are going to form during this reaction. Okay, so each and every atom of the substance, that is the chloride, get converted into gold, neutral atom of gold. And now these atoms come together, they come closer, or they are going to form an aggregate. Okay, so as to we create a soul of gold. Okay, so this is one of the method for the preparation of soul of gold. And the fourth one is hydrolysis. So iron chloride, what we are saying, hydrolysis. Iron chloride whenever subjected for the hydrolysis. What is hydrolysis? Breaking of a molecule with the help of water. Okay. This iron chloride get converted into iron hydroxide, that is FeOH plus we will get 3 molecules of HCl. Now this iron hydroxide which is formed during the reaction, the molecule of iron hydroxide, okay, they come closer to each other and form a particle of size, this colloidal size. Okay, the particle size is equal to colloidal size. So this is one of the source of iron, which is prepared from iron chloride.
Okay, with the help of water. Whenever we dissolve the iron chloride into water, we will get this iron hydroxide. And the particles come closer to each other. They form aggregate. They get associated to form a what? Colloid. Okay, or the particle size is colloidal size. Particle they are going to form. क्या सीखा हमने? केमिकल मेथड सीखे हैं कुछ किसके लिए? कोलाइड्स के प्रिपरेशन। ओके, उसमें हमने 4 रिएक्शन को स्टडी किया है। ओके, 4 रिएक्शन स्टडी किए। एक है डबल डिकम्पोजिशन बोल रहे हैं, जिसमें हमने आर्सेनिक ऑक्साइड लिया था और आर्सेनिक ऑक्साइड को हमने ट्रीट किया था हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ट्रीट करने के बाद आपको एक आर्सेनिक का सल्फाइड मिलेगा। उस सल्फाइड के जो मॉलिक्यूल्स बनने वाले हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, वो क्या करते हैं? एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, एक करीब आके एक बड़ा सा पार्टिकल बनाते हैं और उस बड़ा सा जो पार्टिकल बन रहा है उसकी साइज कितनी होगी कि कोलाइडल पार्टिकल साइज कितनी होगी। तो कोलाइडल पार्टिकल साइज हमें बताइए क्या 1000 नैनोमीटर तक कोई पार्टिकल बनता है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं कि कोलाइडल पार्टिकल है, या फिर उस सॉल्यूशन को हम कोलाइड बोलते हैं। दूसरे मेथड में हमने स्टडी किया था कि ऑक्सीडेशन, जिसमें वापस हमने H2S के साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड को ट्रीट किया था। सल्फर डाइऑक्साइड को जब भी आप H2S के साथ ट्रीट करते हो तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर जो +4 सिचुएशन में है SO2 में, वो कन्वर्ट हो जाता है उसके जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन करने के बाद आपको क्या मिलता है कि ऑक्सीडेशन के बाद आपको मिलता है सल्फर। अभी ये सल्फर के जो एटम्स हैं ओके, वो क्लोज टू ईच अदर आ जाते हैं, एक एग्रीगेट बनाते हैं, कंबाइंड स्टेज में आ जाते हैं और उसकी जो पार्टिकल साइज होती है वो कोलाइडल पार्टिकल साइज से मैच होती है। तो ऐसा एक हमने सोल बनाया था, सल्फर का सोल। उसके बाद में गोल्ड का सोल हम बना सकते हैं। कैसे बनाने का है कि गोल्ड क्लोराइड को क्या करो, फॉर्माल्डिहाइड और वाटर के साथ ट्रीट करो। ओके, तो फॉर्माल्डिहाइड और वाटर के साथ ट्रीट करने के बाद गोल्ड का रिडक्शन हो जाएगा, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उस 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद ओके, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद गोल्ड के एटम आपको मिलेंगे। वो गोल्ड के एटम क्या करते हैं, एक दूसरे के करीब आके एक एग्रीगेट बनाते हैं, एक बड़ा सा पार्टिकल बनाता है और उस बड़े से पार्टिकल का साइज कितना होगा, कोलाइडल पार्टिकल साइज कितना हो जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन बनने वाला है रिएक्शन मिक्सचर के, वो रिएक्शन मिक्सचर में से हम फॉर्मिक एसिड को निकाल देते हैं, HCl को निकाल देते हैं, तो आपको एक गोल्ड का सोल मिलने वाला है। ठीक है, वैसे हाइड्रोलाइसिस करके आप एक बना सकते हो सोल, जिसको हम आयरन हाइड्रोक्साइड का सोल बोलते हैं या फिर फेरिक हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट कैसे बनता है? फेरिक क्लोराइड को हम वाटर के साथ जब भी मिक्स करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, उस फेरिक क्लोराइड को ब्रेक कर देते हैं और फेरिक हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आके एक एग्रीगेट बना देते हैं और उस एग्रीगेट की पार्टिकल साइज जो रहेगी वो कोलाइडल पार्टिकल साइज रहेगी। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, केमिकल मेथड से भी कोलाइड्स बना सकते हैं। और ये सभी हमने कौन को क्या किए, सोल बनाए। ओके, सभी क्या बनाए, सोल बनाए। ठीक है, सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो बोल रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एडिसिव प्रिपरेशन। ये सेकेंड मेथड में हम कुछ सोल बनाने वाले हैं जो केमिकल मेथड से पॉसिबल नहीं कि या फिर बहुत अच्छे नहीं बनते, उनको हम क्या कर रहे हैं, दूसरी एक मेथड से बना रहे हैं जिसको बोला जाता है सेकेंड मेथड को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंटीग्रेशन। और इसी मेथड को नाम दिया गया है, इसी मेथड को हम बोलते हैं ब्रीडिंग मेथड। ब्रीडिंग
ब्रीडिंग आर्क मेथड। ओके, तो ब्रीडिंग आर्क मेथड क्या है? वेरी सिंपल है। एक हमने जार लिया है, एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में हम 2 इलेक्ट्रोड लेने वाले हैं। ऑब्वियसली ये मेटल इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रोड जो है वो किसके रहते हैं? इलेक्ट्रोड्स के मेनली ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम के लेते हैं। ओके, तो इसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को कनेक्ट करेंगे और उसके बाद में इधर एक आइस बात रखेंगे, ये आइस से फ्री रहेगा। इधर क्या रहेगा? आइस रहेगा ताकि टेम्परेचर ज्यादा ना बढ़े। अभी हम इलेक्ट्रिकल आर्क पास करने वाले हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल आर्क और इलेक्ट्रिकल डिसिग्नेशन? व्हाट इज आर्क? आर्क इज नथिंग बट हाई वोल्टेज करंट। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड के बीच में हम क्या करने वाले हैं? हाई वोल्टेज पास करने वाले हैं और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड किसमें डीप है? एक डिस्पर्शन मीडियम में, डिस्पर्शन मीडियम में डीप है। एक डिस्पर्शन मीडियम में इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने डीप किया है और दोनों इलेक्ट्रोड नजदीक ला के हम क्या करने वाले हैं? एक हाई वोल्टेज का स्पार्क करने वाले हैं। ओके, आपने देखा रहेगा कि इलेक्ट्रिसिटी के पोल के ऊपर स्पार्क होता है। जब ये 2 लाइंस एक दूसरे पर चिपक जाती है तो स्पार्क बन जाता है। तो वही हम करने वाले हैं कि हाई वोल्टेज पास करंट देने वाले 2 इलेक्ट्रोड को, और वो 2 इलेक्ट्रोड को हम क्या करने वाले हैं? एक दूसरे के नजदीक लाने वाले हैं, जिससे क्या होगा? स्पार्क हो जाएगा। अभी जब ये स्पार्क होगा, जब ये आर्क पास होगा तो क्या करेंगे? क्या रिलीज होगा? एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट होगी। हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अभी ये जो इलेक्ट्रोड बने हुए हैं वो किसके हैं? गोल्ड का है या सिल्वर का है या फिर प्लैटिनम का है। अभी इधर जो हीट रिलीज होने वाली है ड्यू टू दिस दैट स्पार्क। ओके, व्हाटएवर हीट एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस डिसइंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ओके, व्हाटएवर दैट एनर्जी इज सफिशिएंट, दैट एनर्जी इज सफिशिएंट। वो एनर्जी काफी है किसके लिए? इस मेटल का वेपराइजेशन होने के लिए, मेटल वेपराइजेशन। तो इमीडिएटली क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोड जो मेटल से बने हुए हैं उस मेटल का वेपराइजेशन हो जाएगा और वेपराइज्ड एटम्स जो है वो डिस्पर्शन मीडियम में चले आएंगे। क्यों चले आएंगे? क्योंकि हमने उसको टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर दिया है, इधर आइस लगा दिया है, तो इमीडिएटली वो वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में चले आएंगे। अभी ऐसे मेटल पार्टिकल्स जो वेपराइज हुए हैं वो क्या होते हैं? एग्रीगेट हो जाते हैं और एग्रीगेट होके कोलाइडल साइज का पार्टिकल बना देते हैं, कोलाइडल साइज का पार्टिकल बना देते हैं। So this is very simple method to generate the colloid of gold, silver and platinum. सिंपल मेथड है। ओनली क्या करो? एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे दो, 2 इलेक्ट्रोड ले लो और उनको क्या करो? उनके बीच में एक हाई वोल्टेज स्पार्क दे दो या हाई वोल्टेज करंट पास करो। ओके, क्या हो जाएगा? जब स्पार्क निकलेगा हीट एनर्जी रिलीज होगी। वो हीट एनर्जी क्या करेगी? इस मेटल को उसके वेपर्स में कन्वर्ट करेगी। लेकिन वेपर किधर बन रहे हैं? डिस्पर्शन मीडियम में बन रहे हैं। ओके, जो डिस्पर्शन मीडियम ऑलरेडी लो टेम्परेचर पे है तो इमीडिएटली उसको उस वेपर्स को मीडियम में क्या किया जाएगा? डिसॉल्व किया जाएगा या फिर वो डिस्पर्स हो जाएंगे। ओके, वो डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स हो जाएगी और डिस्पर्स होने के बाद क्या हो जाएगा? आपका गोल्ड, सिल्वर या फिर प्लैटिनम का कोलाइड नेचर। ओके, ठीक है। तो ये एक मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड। एंड द लास्ट वन, द थर्ड वन इज कॉल्ड एज पेप्टाइडेशन। Last one is what is the peptidation. What is peptidation? Conversion of precipitate into colloidal solid. Okay, क्या है? Conversion of precipitate
into colloidal soul, how? By shaking with dispersion medium in the presence of electrolyte. In the presence of electrolyte is called as a peptidation. ओके, तो पेप्टाइजेशन में क्या कर रहे हैं? हम एक प्रिसिपिटेट बना के ले रहे हैं पहले, ओके, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट ले रहे हैं, और वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट हम क्या कर रहे हैं? एक डिस्पर्शन मीडियम के साथ, ओके, जिसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस व्हिच गेट डिसोसिएटेड इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन. ऐसे इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, ओके, उस डिस्पर्शन मीडियम में ऑलरेडी कुछ क्वांटिटी में, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, ओके, और ऐसे डिस्पर्शन मीडियम में हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट डाल रहे हैं और उसको जस्ट शेक कर रहे हैं. उसको क्या करने का है? शेक करने का है. शेक करने के बाद हमको क्या मिलेगा? कोलाइड्स मिलेगा. ओके, जो पार्टिकल साइज प्रेसिपिटेट की बनेगी वो कोलाइडल पार्टिकल साइज होती है. ठीक है, ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं? कोलाइड. ओके, अभी इधर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, ओके, ये रिस्पांसिबल है कोलाइड्स बनाने के लिए. ओके, एंड दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रोलाइट is called peptidizing agent. इधर इसको इलेक्ट्रोलाइट नहीं बोलेंगे, इसको पेप्टाइजिंग एजेंट बोलेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलेंगे? पेप्टाइजिंग एजेंट. Okay, so requirement is that, what is requirement? The PPT must be fresh. So generally fresh precipitate use करना चाहिए. अगर आप कोलाइड बनाना चाहते हैं तो fresh precipitate यूज करना है. क्या होता है? Okay, पेप्टाइजेशन में क्या होता है? पेप्टाइजेशन में पीपीटी को कोलाइडल पार्टिकल साइज में कन्वर्ट कर रहे हैं. पीपीटी बोले तो सॉलिड मास व्हिच इज सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन. एक सॉलिड मास है जो सेपरेट हुआ है सॉल्यूशन से. ओके, तो सॉलिड मास को जिसकी पार्टिकल साइज ऑलरेडी बहुत बड़ी है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि वो सेपरेट हो रहा है, ठीक है ना, उसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं कोलाइडल पार्टिकल साइज. इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उस प्रेसिपिटेट को लेके डिस्पर्शन मीडियम में डाल के शेक कर रहे हैं. किसके प्रेजेंस में? एक पेप्टाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में शेक कर रहे हैं. होता क्या है एक्चुअली प्रोसेस में? होता क्या है? तो प्रेसिपिटेट का जो पार्टिकल्स है तो क्या होता है, जब भी आप प्रेसिपिटेट लेते हो, समझो कि एक प्रेसिपिटेट है, ओके, दिस इज योर पीपीटी. ओके, तो पीपीटी क्या करता है? आपका इलेक्ट्रोलाइट में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है उसमें से कोई एक को, किसी एक आयन को एडसॉर्ब कर लेता है इसके ऊपर सरफेस पे. अभी प्रेसिपिटेट अगर पॉजिटिव आयन को एडसॉर्ब कर लेता है तो होल प्रेसिपिटेट के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा. ओके, आयंस जो एब्सॉर्ब हो जाएंगे तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा? इस सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. अभी पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के नजदीक आ गए तो इनका रिपल्शन हो जाएगा, तो ये ब्रेक हो जाएगी. ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज को एडसॉर्ब कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज जो सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब हुए के एडसॉर्प्शन इज नथिंग बट सरफेस करंट. तो सरफेस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज एडसॉर्ब हुए तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज एडसॉर्ब हो जाएंगे वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, आएंगे. लाइक चार्जेस एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, उसमें इसके बीच में रिपल्शन है तो ये क्या करेंगे? इस प्रेसिपिटेट को तोड़ देंगे. ठीक है, तोड़ने के बाद क्या मिलेगा आपको? छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे जो डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स हो जाएंगे. अभी ये एग्रीगेट नहीं, वापस प्रेसिपिटेट एक ही जगह पे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. अगर सबने नेगेटिव चार्ज एब्सॉर्ब कर लिया तो पूरे प्रेसिपिटेट के सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा,
और ये जितने भी नेगेटिव आयंस इधर एब्सॉर्ब हुए उनके बीच में रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा। रिपल्शन क्रिएट होने के बाद वो प्रेसिपिटेट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा इनटू स्मॉल पार्टिकल टू गिव अ कोलाइड। So this is regarding the preparation of colloid and cleansing action of soap. Okay, the remaining part we will discuss in the next lecture. Thank you.